गाजियाबाद के हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद के सभागार में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अतुल भट्ट जी का स्वागत समारोह में, जिसमें श्री अतुल भट्ट जी ने हाईटेक परिवार के समस्त अध्यापक तथा स्टाफ के साथ अपने विचार साझा किए एवं श्री अतुल भट्ट जी के द्वारा तेहरान, कजाकिस्तान, टाटा स्टील आदि में प्राप्त अनुभव के बारे में जानकारी दी तथा स्टील व्यवसाय की बारीकियों के बारे में समझाया। कार्यक्रम का संचालन हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन श्री आनंद प्रकाश जी ने किया तथा आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। So there was one thing which I did, just one thing which I did. I said we have to just align our activities with the government priority, because government today is the biggest spender. So if government is constructing pipelines, this gas to gas, government is Pradhan Mantri's Urja Ganga program is there, where this pipeline is being laid across the country, then Nikon should get into that. So just one shift I made in the alignment of the activities of Nikon, that let us align ourselves with the government priorities. And even there were companies who had domain expertise like Engineers India Limited, for instance. They used to be the main consultant of Gas Authority. But then I met Mr. Tripathi. I said, look, I am going to create this core team, and my Delhi office will be handling, and we will anticipate, we will develop secure networks. So gradually, through aggressive marketing, we started getting a share. And in fact, we became we became the leader in this pipeline laying across the country. And that became a regular revenue generator, because now the government priority says that each and every household has to be connected with a gas pipeline. Then 24/7 electrification. We entered into dialogue that okay, we will go to every district and get into this rural electrification business. Water pipeline business. Space was there. Even infrastructure we ventured. And I am very proud to share with you that 320 crore turnover in 4 years time, it became 750 crores. And the company which was minus 170 crores, in 1.5 years, I was able to turn it around to a profit of 58 crores. So suddenly, money started flowing in. Our, negative, net worth went up. We started paying dividends to the government. I told the government that, look, you have only invested 40 crores in Nikon, and today our net worth is, more than 400 crores. And everybody was, so confident. And when I joined RINL, I am seeing a very similar kind of a story. That the company is not doing well. Company made a loss of more than 4,000 crores, I think 2 years back. The company has been making losses since 14-15. The same public sector employees I have seen, creating records outside. This is the best plant in terms of the raw material. We have talented manpower. We have the best location. Through the conveyor, our material is coming. So what is the? So, I have, from whatever I have learned, I am very confident that the same, let's say, success story, we will be able to achieve in RINL as well. And one thing which I learned is that success in a company always starts from the customer. So that is why over this period I have always tried to meet all my customers, talk to them, try to meet their requirements, because customer first. I remember Mr. Muthuraman in Tata Steel, when I went to his office, he had one plaque, in front of him. And that plaque, it still left a big impression on me. I would rather own a market than a man. That I would rather than. मैं चाहूँगा मंडल साहब भी 2 शब्द कहकर कुछ मार्गदर्शन दें। Good afternoon, everyone.
Good afternoon, sir. Manoj sir. Good afternoon, Minister. Sanjay sir. Thank you for giving this opportunity to come here and have an interaction with RNL. We L&T are one of the largest consumers in terms of steel and cement. With the projects we have, we are into nation building. So you all may be aware that Larsen and L&T Construction is into nation building, and we have projects across India in every district. Almost you must have seen, and with RINL, we are doing thousands of tons of business in terms of TMT with RINL. And in North, Sanjay Saab has been very supportive. Thank you very much. Thank you. L&T से मंडल साहब का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच जिनका जिक्र यार्ड में भी था और यहाँ भी अभी यार्ड में यहाँ भी जिक्र था, अरुण गुप्ता साहब बंसल वायर से और उमेश गुप्ता साहब पधार चुके हैं। मुकुल साहब का भी जिक्र यार्ड में और यहाँ कंटिन्यू रहा है। तो मेरा निवेदन है अरुण जी से, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए सर, दो शब्द कहकर अपना मार्गदर्शन दें। CMD साहब का बहुत धन्यवाद। आपने नॉर्थ के लिए स्पेशली गाजियाबाद निगम प्लांट, वी आर योर कस्टमर 1991 से। पहले दिल्ली में हमारी इंडस्ट्रीज थी और गाजियाबाद और एंड वी आर इनटू माइल्ड स्टील, हाई कार्बन एंड स्टेनलेस स्टील, ऑल द थ्री स्टील्स। आपकी पूरे राष्ट्रीय इस्पात की हमको पूरी सपोर्ट रही है और आगे भी आगे रखें। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश साहब, आप कुछ कहना पसंद करेंगे? धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग 3 लोगों के बीच बैठे हैं, बंसल वायर और चौधरी अमरवर्ष और L&T। वास्तव में जैसे छोटे मजदूर के लिए सैलरी देने वाला भगवान होता है, हम लोगों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वास्तव में मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने भी चौधरी साहब से भी की थी कि हमारे इंजीनियरिंग के छात्र कभी ट्रेनिंग लेने के लिए आपके यहाँ पदार्पण करें तो आप अनुमति जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी के लिए साहब ने वादा किया है। मैं खुद रहूंगा जब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा निवेदन है CMD साहब से कि वो हमारे आए हुए तीनों मेहमानों को, चौधरी ठक्कर साहब भी हैं, एक मोमेंट ऑफ लव धन्यवाद। मेरा नाम है अतुल भट्ट। मैं RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का CMD हूँ और यहाँ पर मैं आया था चेयरमैन हाईटेक इंस्टीट्यूट के निमंत्रण पर कि मैं इनकी फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूँ। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा क्योंकि हम लोग को पता है कि जो स्टूडेंट पावर है, जैसे हम लोग ने कुछ सालों पहले एक हैकाथॉन का आयोजन किया था, उसमें हम लोग ने स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से कहा था कि भाई आप ये बताइए कि जो स्टील इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें किस तरह से आप इमीडिएट सॉल्यूशंस दे सकते हो। और बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आए थे स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ये मैंने आज उनको बताया कि जो स्टील इंडस्ट्री है उसका महत्व क्या होता है, और दुनिया में इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, तो ग्लोबली भी हमारी एक स्टैंडिंग है। तो ये अच्छा रहा एक इंटरेक्शन सारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ, बिकॉज यही हमारे देश के फ्यूचर हैं। और फ्यूचर में जो जिस तरह से स्टील इंडस्ट्री मोस्ट एफिशिएंटली रन करे,
इन्हीं पे मतलब इनके जो टैलेंट्स और हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। लोहे पे जो तेज़ी आ रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोहे पे जो तेज़ी आई थी कुछ महीने पहले, वो जो चाइना से एक्सपोर्ट कम हो गया था और उसकी जगह जो इंडिया ने ली थी उसकी वजह से थी। तो इसमें अब आगे उतरने के आसार हैं इसमें? धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि थोड़ा मार्केट करेक्शन हो रहा है और बट जो सरकार की जो कार्यक्रम हैं, जिस तरह से हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो बहुत सपोर्टिव रहेगा और मुझे लगता है कि अब मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। लोहा व्यापारी को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप मतलब एक अच्छे ग्रोइंग बिजनेस में हैं जिसका फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि ग्लोबली जो है वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टील धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया इज़ नाउ सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, तो फ्यूचर इज़ ब्राइट और वो अपने कस्टमर्स क्योंकि व्यापारी जो होता है वो कस्टमर के टच में रहता है, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के लोहा में बनाएं, किस तरह हम लोग सुधार लाएं और वो मैन्युफैक्चरर्स को बताएं, ताकि निरंतर इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है दुनिया के क्षेत्र में नंबर 1 हो। चलिए हम जानकारी लेते हैं। अभी चेयरमैन साहब से मुलाकात करेंगे, रंजीत से, उनसे इस बारे में बातेंगे थोड़ा। जो आज प्रोग्राम किया गया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें और बताएं। हमारे राष्ट्रीय इस्पात निगम के CMD माननीय अतुल भट्ट साहब आज गाजियाबाद यार्ड का सर्वे करना चाहते थे, दिल्ली आए हुए थे। मैंने उन्हें निमंत्रित किया, वो हमारे निमंत्रण पर गाजियाबाद आए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी बहाने मैंने यहाँ बच्चों और फैकल्टी को भी कुछ मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया था, जिसमें उन्होंने पूरा योगदान दिया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो प्रोग्राम किया गया है उस प्रोग्राम में तकरीबन मैंने देखा कि वैक्सीन भी लगाई जा रही हैं और काफ़ी सारे कार्यक्रम आपकी तरफ से हुए हैं, तो उसमें कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग डरते थे या जाते थे तो वहाँ लाइन में लग जाते थे। हमने इसलिए यहाँ पास के जो 8 गांव हैं उनके लिए भी कॉलेज पर ही बुला करके वैक्सीन लगवाई है और बड़े खुशी से, ये 1 हफ्ते से चल रहा है प्रोग्राम, बड़ी खुशी से लोग आए, काफ़ी लोग आकर के अपना वैक्सीनेशन करा के गए। हम चेयरमैन साहब से बात की आनंद जी से, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि काम कर रहे हैं, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सुनकर सीखेंगे कहानी आपकी। आप देख रहे हैं सच का कारवा अपना ठाकुर।